مسجدوں کے لیے بلانے کی بات نہیں، گردن کٹانے کے لیے بلاتے تو وہ ایسے حاضر ہوتے، ہمارے جلسوں میں بھی اتنے نہیں آتے، وہ کٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں سارے جوان آ جائیں میرے ساتھ، کوئی گھر میں باقی نہ رہے۔ سب آگے صفیں لگ گئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں سب کی صفیں میرے آقا ترتیب دے رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، دیکھا 1.5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاتون مدینہ بچہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان تو سنا کہ آپ نے سب جوانوں کو طلب کیا ہے، جس کے گھر میں جو تھا سب آ گئے۔ میرے آقا پچھلے جہاد میں میرا شوہر فوت ہو چکا، میرا کوئی بھائی نہیں رہا، میرے پاس کوئی جوان نہیں، میرے مرحوم شوہر کی ایک نشانی یہ 1.5 سالہ بچہ ہے، دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لڑکا ہے اس کو لے کر گود میں رکھوں، اسی کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی، یہ قبول فرما لے۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پوچھا، اے خاتون 1.5 سال کا بچہ یہ دودھ پینے والا اسے کہاں جہاد میں لے آئی، اس جنگ کے میدان میں کیوں لے آئی؟ جذبے کو سلام ان ماؤں کے، اللہ اکبر۔ وہ خاتون مدینہ کہتی آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار کیا تیر بھی اٹھا نہیں سکتا، مگر میرے آقا میں یہ چاہتی ہوں میرا یہ بچہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ وہ میدان جہاد میں جب لڑتا رہے کافروں کی طرف سے اگر تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرے بچے کو وہ ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرا بچہ لڑنے کے کام نہیں آیا تو ان کے ڈیفنس کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزو، انہوں نے عظمت رسول کے لیے وہ قربانیاں دی، تب نصرت الہی جھما جھم برسات کرتی رہی، مولا کریم ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا مولا نے رضی اللہ عنہم، سب گواہ ہو جاؤ اللہ ان سے راضی ہے۔ میرے عزیزو، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، حضور فرماتے ہیں قریب دیکھو گے تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا۔ کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے، ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے، کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء البحر، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، یہی تو کیفیت ہے آج ہماری، کبھی اس کی جے بھی جائے، کبھی اس کی جے بھی جائے، ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے۔ اخلاص اور پیوریٹی جب نہ ہو، اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا، وہن، وہم نہیں وہن۔ آج کی بات نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے، لیکن یہ بدل جائے گا۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا، دشمنوں کا رعب آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے۔ اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہیں ہم، دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے، اچانک کوئی چیز سامنے سے آتی نظر آئی، کسی اور کو نہیں، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹایا، دھکا دیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پیالہ اٹھایا، پھر کوئی چیز آتی نظر آئی، اس کو ہٹایا، تیسری مرتبہ میرے آقا نے پیالہ اٹھایا لیکن شہد نہیں تناول فرمایا، نیچے رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ توجہ سے سننا میرے عزیزو، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں آتی؟ کس چیز کو آپ دور کر رہے تھے؟ سنو، وہ عظمت والی نگاہیں دیکھتی ہیں جو سب کی نگاہیں نہیں دیکھتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، دنیا میرے پاس پورا مال و دولت لے کر کے آئی، کہا یا رسول اللہ میرا مال زر دولت قبول فرما لیں، آپ کے لیے خزانے کھول دوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے دھکا دے کر دور کیا، مجھے فقر پسند ہے، مجھے فقر پسند ہے، میں نے دنیا کو ترک کیا۔ وہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں شہد پینا چاہ رہا تھا، دنیا اپنے حسن و جمال کو لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ میرا حسن و جمال قبول کر لے، ہر طرح کی حسین سے حسین شہزادیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس کے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر دور کیا،
दो चीजें, दौलत और माल को भी दूर किया, हुस्न और जमाल को भी दूर किया। तीसरी मर्तबा दुनिया मेरे पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे दौलत और माल को भी आपने ठुकराया, हुस्न और जमाल को भी ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मेरी ये दोनों चीजें ले लेगी, आपसे दूर हो सकती है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने दुनिया की ये बात सुनी तो मेरे उम्मत की जुदाई के गम में मुझे आंसू आ गए। क्या मेरी उम्मत दुनिया की तलबी के लिए, हुस्न और जमाल के लिए मेरे आका को छोड़ देगी? आज हो भी तो रहा है मेरे अजीजों। हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत को छोड़ा है सिर्फ 4 दोस्तों को मनाने के लिए। पूछा किसी नौजवान से, क्यों मियां तुम ये दाढ़ी क्यों छिलाकर गटर और नालियों में बहाते क्यों? हाँ बस हमको 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, धंधा पानी है, जॉब है, फलां है, वो है। तुमने दुनिया के लिए अपने नबी की अजमतों को निकाल दिया। और मैं कहता हूं जिन लोगों को राजी करने के लिए तुमने अपनी शनाख्तें बदल दी, ये तो तुम्हारी कब्र पर मट्टी डालकर 5 मिनट भी नहीं बैठते। जब कब्र की तख्तियां तुम्हारी बंद होती हैं, वो न दोस्त आता है, न वो भाई आता है, न तुम्हारा वो ऑफिसर आता है जिसको दिखाने के लिए तुम सजते सवरते थे। आता है कब्र में तो मदीने का ताजदार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मशाइख एज़ाम औलिया कामिलीन फरमाते हैं कब्र के उस सवालों के वक्त जब तुमसे ये पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे ना 3 सवाल सबको मालूम है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मेरे आका कब्र में होंगे, फरिश्ते उनकी तरफ दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तवज्जो से सुनो ए नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो मेरे आका को देखकर तुम्हें चीख पड़ूंगा, ये मेरे आका है, मेरे दाता है, मेरे मौला, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कब्र में जब तुम उस वक्त देखोगे मेरे आका अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे तो दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज क्यों देख रहा है? तो क्या बुलाओगे उन्हीं फिल्मी एक्टरों को, कब्र में पुकारोगे उन्हीं लोगों को जिसके तुम फैन हो? क्या जाओ हम तुम्हारा हेयर स्टाइल अपनाते थे, तुम्हारे कपड़ों की तरह कपड़े पहनते थे, तुमने अगर पैंट फाड़ ली तो हम भी फाड़ लेते थे, बुलाओगे कब्रों में उनको? मेरे अजीजों उस वक्त सिवाय दामन रसूल के कोई चीज तुम्हें बचा ही नहीं सकेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार हम सब औलिया कामिलीन ने यही दर्स दिया। सरकार सय्यदी हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। उस अजीम शहजादे को आप देख रहे हैं जिस बारगाह का मैं एक अदना सा भिखारी हूँ। माँ रहरा मुतहरा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, वहां के मशाइख और पीराने इज़ाम ने जो पूरी दुनिया की तरबियत की है, मैंने मौजू ही इसलिए अभी आपके सामने घुमाया कि वो एक खानका ऐसी नजर आती है जिसने तर्के दुनिया हमें सिखाया है, तर्के दुनिया हमें सिखाया। बड़े बड़े लोग अपने नजरानों के साथ वहां हाजिर रहते खरीदारी के लिए, लेकिन मारहरा के एक पीर को भी आज पूरा हिंदुस्तान खरीद नहीं सका। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया, हुजूर ताजुल मशाइख। मेरी इस्लाह फरमाएंगे हुजूर, जहां तक मुझे रिवायतें मिली हैं, लेकिन ये देखी हुई आंखें, मैंने सुना अभी कानपुर में कल कि सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह को दावत दी गई मुंबई किसी इजलास के लिए, मीलाद के। आप जा रहे थे और मारेरा मुतहरा के गरीब बस्तियों वाले आ गए, कहा हमारे घर में भी मीलाद है। आपने फरमाया नहीं मुझे मुंबई जाना है। देहात वाले कभी कभार जो वालेहाना मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत ही अलग होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा मियाँ आप वहीं जाएंगे, बड़े शहरों में, बड़े शहर में जाएंगे। और मैंने सुना कि उन्होंने ये तक कहा कि ठीक है मियाँ जाओ, जब इंतकाल होता है तो मारेरा वाले ही रहेंगे, मुंबई वाले थोड़ी ना आएंगे। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बस्ता सारी चीजें रख दी और कहा छोड़ो, बताओ कहां है महफिल, अब यही महफिल करेंगे। ये उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फिक्र होती है, न कि दुनिया तलबी। उन्हीं औलिया की बारगाह में हम आज सर झुकाते हैं जिन औलिया ने हमें ये दुनिया में डूब जाने से महफूज रखने के इलाज अता किए हैं। मेरे अजीजों आज आप सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज डूब गए हैं इंटरनेट में, ये जाल है, ये ऐसे फंसे हुए हैं, रात को इसके हाथ में मोबाइल आया, सुबह की अजान तक गेम में मसरूफ है और पोर्नोग्राफी, पता नहीं कैसी कैसी गंदी तस्वीरों के साथ पूरी रात गुजारते रहते हैं। तुम जिस चीज में जकड़े हुए हो तुम उसके लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम उसके लिए नहीं बनाए गए हो, तुम अज़मत मुस्तफा के अलंबरदार हो। कुरान ने तुम्हें कहा है कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कहां ये गलाज़तों में पड़ गए, कहां तुम्हारे हाथों में ये आ गई? तुम्हारे हाथ तो कुरान करीम उठाने के लिए थे, तुम्हारी जुबानें तो अज़मत रसूल के गुन गाने के लिए थी, तुम्हारी आंखें तो वो होनी चाहिए कि जिसके दिल पर पड़े वो ईमान से सरशार हो जाए। आज हमने अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। पलट आओ, बदल जाओ, फिर से वो मदद अल्लाह की हमारे साथ आने वाली है। सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज के उर्स मुक़द्दसा की मुनासिबत से भी मैं यही अर्ज करना चाहूंगा। आखिरी बात मैं समेटता हूं। मैंने मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर
ताजुल मशाइख को इतनी देर तक जहमत दी है, मैं अल्लाह की बारगाह में माफी भी तलब करता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि बच्चा बाप के सामने जब ज्यादा बोलता रहता है तो सिर्फ इसी उम्मीद से बोलता है कि जहां फिसलन होगी ये संभाल लेंगे, कभी तो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, कहीं तो हमारी उंगली थाम लेंगे। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज को आप जानते हैं, गरीबों को नवाजते थे, अता करते थे, लुटाते थे। लेकिन एक बात मुझे दहला देती है, इन औलिया की वो बारगाह में जब जाते हैं, मैंने एक चीज पढ़ी, आपके एक साहबजादे ख्वाजा हुसामुद्दीन जो गायब हो गए, उनका पता नहीं चल सका। ख्वाजा हुसामुद्दीन, वो हुसामुद्दीन नहीं जो सांबर शरीफ में, ख्वाजा हुसामुद्दीन के मुतालिक मैंने ये पढ़ा कि वो बचपन में, यानी जवानी की उम्र थी, 15 साल के करीब, मदरसे से आ रहे थे। मदरसा मतलब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी आलिम के पास बिठाया था पढ़ने के लिए। वापस आ रहे थे तो अपने साथियों के साथ आते आते रास्ते में चक्कर आया और गिर गए, चक्कर आकर गिर गए। तो दोस्तों ने उठाया और पूछा, हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 3 दिन से मेरे घर में फाका चल रहा है, 3 दिन से घर में फाका चल रहा है, भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान कर दिया, मैं चकरा गया। वो बच्चे घबरा गए, उठाया, गरीब नवाज के बेटे की हालत ये है, उठाया और कहा आपके बाबा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती जो हम सबके सरों के ताज है, वो भी फाका करते हैं। बेटे ने कहा, ए बच्चों, मैं तो 3 दिन से हूं, मेरे बाबा को पिछले 9 दिन से फाके में मैं देख रहा हूं। इतना कह करके वो आ तो गए, सारे बच्चे दौड़कर अपने अपने घरों पर जाकर अपने वालिदैन से कहा, हमने तो अजीब मंजर देखा, पीर मुर्शिद के घर में फाका है और वो पूरी दुनिया को नवाज रहा है। घरों से सारे लोग बड़े बड़े तबक लेकर के आए। शाम के वक्त गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजा इफ्तारी के लिए बैठे थे। सारे खाने देख करके आपने महसूस किया आज तो कुछ अलग हुआ है, इतने खाने तो आते नहीं थे। लोगों से पूछा कि आज सारे लोग खाने लेकर के आ गए, क्या बात है? सबों ने कहा, हुजूर हमने ये सुना है कि आपके घर में फाका चल रहा है, हमको आपने इशारतन भी नहीं कहा, हम सारी चीजें लेकर हाजिर हो जाते। सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि कौन बताया? कहा ख्वाजा हुसामुद्दीन आज गिर गए थे रास्ते में, चक्कर आकर के भूख की शिद्दत की वजह से, तो हमने हमारे बच्चों से सुना कि वो कह रहे थे आपके घर में फाका है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तनाउल करना था तनाउल फरमा लिया। घर आए, रात को अपनी अहलिया मोहतरमा को बुलाया, हुसामुद्दीन किधर है? बुलाने के बाद आपने सिर्फ एक तंबीह कही, ए हुसामुद्दीन तुम हमारे सामने से दूर हो जाओ, इसलिए कि मैंने जो फाका किया था वो कौम को दिखाने के लिए नहीं, ये मेरे रब का और मेरा राज था जो तूने इफ्शा किया है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की आदतें थी। वो आले रसूल हैं जिन्होंने हमें दीन दिया है। आज तो बच्चे सिर्फ इसलिए बिगड़े हुए हैं कि माँ ने आज चिकन नहीं बनाया है, माँ ने आज मटन नहीं बनाया है, भाग के चला गया। मेरे अजीजों, ये दर्स भी तो 2 बच्चों को कि कनात भी किसी चीज का नाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरबियत दी है, उस तरबियत को भी अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करो। आज वो बच्चियां जो टीवी सीरियल देख करके अपने लाइफ स्टाइल को मुतय्यन कर रही हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा, मैं सिर्फ आपसे जो मुखातिब हूं इसलिए कि आप मुसलमान हैं, मैं काफिरों के दरमियान गुफ्तगू नहीं कर रहा। आपका और मेरा ताल्लुक मदीने के ताजदार से है, तो बात भी मैं मदीने के ताजदार की ही कर रहा हूं। आप सबको अमल करना ही चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में ये भी सिखाया, हसनैन करीमैन। शहाबुद्दीन कलियूबी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं, मुझे दर्द होता है इस चीज को बयान करते हुए कि मेरे आका घर में आए, हसनैन करीमैन को रोता हुआ देखा, पूछा फातिमा क्यों रो रहे हैं? कहा भूख से रो रहे हैं, भूख से रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जाऊंगा इनके लिए कुछ न कुछ लाऊंगा। और मेरे आका कहे कहां से लाते? वो मालिक जन्नत है, तलब करे जन्नत के तबक उतर जाएं। लेकिन मेरे आका मदीने तैयबा से बहुत दूर आ गए, एक बागीचे में दाखिल हुआ। बागीचे का मालिक वहां खड़ा था, उससे पूछा कि ए बागीचे के मालिक, क्या तू मुझे मजदूरी पर रखेगा? तेरे बागीचे में किसी काम की हाजत है? उसने कहा हाँ, ये देखो ये कुआं है, इसमें डोल डालो, पानी उठाओ और मेरे खजूरों के बागीचे में खजूरों के दरख्तों की सिंचाई करो। एक डोल निकालोगे तो 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। रस्सी लेकर के डोल से पानी निकालते और उठाकर ले जाकर उस दरख्त पर डालाते, 2 खजूरें वो देता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका ने पूरी उम्मत के दर्स के लिए किया है, जिनका हाल आज ये है। हमारे बच्चे और जवान ये सोच करके बैठे मेरे स्टैंडर्ड का तो काम ही नहीं है, हलाल कामों के लिए भी इस तरह बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत इधर उधर से आए हुए माल से नहीं फरमाई, हलाल अपनी मजदूरी अपनी मेहनत से भी फरमाई। 3 डोल आपने खींचे थे। हजरत कलियूबी फरमाते हैं दर्दनाक वाकया है, रस्सी टूट गई और डोल गिर गया, रस्सी टूट गई, डोल गिर गया। उस बागीचे का मालिक जानता नहीं था, वो आया, आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, रस्सी को जोड़ा, उठा करके जितने डोल निकाले वापस मेरे आका तशरीफ लाए, वही खजूरें लाकर हसनैन करीमैन को खिलाया जो भूखे थे। मेरे अजीजों, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को मजबूर घराना न समझना,
पूरी दुनिया उनके चौखट की कनीज है, मगर सिखाया है उन्होंने फख्र को सिखाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शाम में वो शख्स दौड़ता हुआ आया, उसे किसी ने खबर कर दी कि जिस पर तूने आज हाथ उठाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने तलवार लेकर अपना हाथ काट दिया। मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मैंने मेरे आका यानी रसूल पाक पर उठाया। या तो वो ईमान वाला नहीं था, इसकी तफसीलात उस हिकायत में मौजूद नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो दौड़ता हुआ आया, मेरे आका ने अपना लुआब पाक लगाकर फिर से हाथ को जोड़ दिया और कुछ भी मुआखजा नहीं फरमाया। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें मैं सिर्फ इश्क रसूल में तुम्हें डूबने के लिए कह रहा हूं। वो अजमत वाले रसूल की मोहब्बत में झूम जाओ जिस रसूल को अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मबूस किया है। तुम अब तक अपनी हैसियत नहीं समझ सके। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते रहे और पिछली उम्मतें रोया करती थी, उम्मत मुस्तफा की किस्मत पर वो रश्क किया करते थे। क्या हो गया हमें? हम अपनी हैसियत नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी हैसियत को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला पूरे जहानों की रहमत बनाया है। वो किसी आलम में रह जाते, क्योंकि वो हर आलम की रहमत है। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे आका हमारे दरमियान है। ये जो अज़ाबात हमसे उठाए गए हैं, आज हमारे गुनाह वैसे ही हैं जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे भी हैं जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे गुनाह भी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के भी थे। लेकिन उनकी नाफरमानियों पर मौला उन्हें बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, जमीन फाड़ करके उन्हें तहस नहस कर दिया, आसमान से पत्थरों की नोकेली बारिशें की, आग बरसाया। वो सब अज़ाबात देख रहे हो आज तुम? आ रहे हैं? नहीं आए। कुरान ये भी कहता है, मा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अब अल्लाह वैसे अजाब नहीं भेजेगा, इसलिए कि लोगों तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल जलवागर है। ये रसूल की बरकत है। और आप ये सोच करके बैठे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। मेरे आका की रहमतों ने बचा रखा है, तो क्यों ना हम पलट करके उसी ताजदार मदीना की तरफ चले जहां से सिद्दीक अकबर चले थे, जहां से हैदर कर्रार चले थे। मेरे अजीजों, रास्ता एक ही है हमारी कामयाबी का। पलट जाओ उसी गुंबद खजरा की छांव की तरफ, वहां से जो अहकामात मिले सर झुकाकर अमल करो, फिर देखो दुनिया के इक्तिदार भी तुम्हारे कदमों में है।